بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مشاعرہ بزم آئین سخن انڈیا اور سخنور انٹرنیشنل کے اشتراک سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے زوم پر، جس کے ہمارے منتظمین کے آر ساگر صاحب ہیں، زیب النساء زیدی صاحبہ، اور آج کے مشاعرے کی صدارت جناب تنویر پھول صاحب کریں گے۔ میں ان سے دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تلاوت کلام پاک سے مشاعرے کا آغاز کریں۔ جی تنویر آپ کا مائک آف ہے۔ بھائی کا آف ہے۔ تنویر بھائی آپ کے مائک سے آواز نہیں آ رہی۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ ہاں ایک ساتھ آگے آواز آ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إله في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 تا 257 سماعت فرمائی۔ اور یہ پہلی آیت جو ہے اسی کے نام سے معروف ہے، اور باقی دو آیتیں اور ہیں، تو ان کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہربان ہے وہ، ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائیں نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائیں نام اس کا۔ آیت نمبر 255 تا 257 سورہ بقرہ۔ اس کی تفہیم سماعت فرمائیے۔ نہیں معبود ہے کوئی سوا اللہ کے ہرگز، نہیں معبود ہے کوئی سوا اللہ کے ہرگز، وہی زندہ وہی قائم سب اس کے سامنے عاجز، وہی زندہ وہی قائم سب اس کے سامنے عاجز۔ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، زمین اور آسمانوں میں اسی خالق کی ہر ایک شے ہے، کس کو تاب جو آگے سفارش کر سکے اس کے، بجز اس کے جسے وہ حاکم مطلق اجازت دے، بجز اس کے جسے وہ حاکم مطلق اجازت دے۔ وہ ماضی اور مستقبل کی سب باتوں کا ہے عالم، ہمیشہ سے ہے وہ قائم ہمیشہ ہے وہی حاکم، ہمیشہ سے ہے وہ قائم ہمیشہ ہے وہی حاکم۔ احاطہ کر نہیں سکتا ہے اس کے علم کا کوئی، احاطہ کر نہیں سکتا ہے اس کے علم کا کوئی، آیا ہوتی ہے بس وہ چیز
جس میں اس کی ہو مرضی، عیاں سبحان ہوتی کیا اللہ، ہے بات بس وہ چیز جس میں اس کی ہو مرضی۔ ساری سائنسی ایجادات سب اس کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ انسان کو کرنا بے نہیں شک، چاہیے کہ سائنس نے یہ کر لیا وہ کر لیا، اگر وہ نہیں، انسان کے دماغ پر وہی اسی کا حکم چلتا ہے، اور وہی جتنا وہ چاہ رہا ہے بتا رہا ہے۔ بے احاطہ شک، کر نہیں سکتا ہے اس کے علم کا کوئی، عیاں ہوتی ہے بس وہ چیز جس میں اس کی ہو مرضی۔ یہ کیا کتاب بات، چھپی ہے تو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ بے شک، انسان کو خدا کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے بہت ترقی کر لی ہے، سائنس دماغ خراب ہو کیا گیا، ایسی ایسی کتابیں لکھ رہے ہیں اسی کا استغفر جواب ہے۔ اللہ، توبہ استغفار۔ ہاں، احاطہ کر نہیں سکتا ہے اس کے علم کا کوئی، عیاں ہوتی ہے بس وہ چیز جس میں اس کی ہو مرضی۔ اسی کیا کا بات، عرش حاوی ہے زمین اور آسمانوں پر، کہ اس کے تخت کی وسعت ہے غالب سب جہانوں پر۔ سبحان نگاہ اللہ، بانی میں اس کی چل بے رہا شک، یہ نظم عالم ہے، ہاں، نگاہ بانی میں اس کی چل رہا یہ نظم عالم ہے۔ وہ بے جی، شک سب سے اعلیٰ ہے، وہ بے شک سب سے اعظم ہے، وہ بے سبحان شک اللہ، سب کیا سے بات، اعلیٰ ہے، وہ بے شک سب سے اعظم ہے۔ واہ، اور کیا دین بات، میں جبر نہیں، یہ بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ سے۔ سبحان اللہ، سمجھ لو تم سبحان نہیں اللہ، ہے دین سبحان میں اللہ، کوئی زبردستی، سمجھ لو تم نہیں ہے دین میں کوئی ہاں، زبردستی، ہاں، نہیں ہے جبر و زور اس میں عقیدے کی ہے آزادی، نہیں کیا ہے بات، جبر و زور اس میں عقیدے کی ہے آزادی۔ ہدایت گمرہی سے ہو چکی ممتاز ہے لوگو، ہاں، ہدایت گمرہی سے ہو چکی ممتاز اے لوگو، کرو تم غور اس پر راہ سیدھی ہاں، دل سے تم پکڑو، سبحان کرو اللہ، تم کیا بات، غور اس پر راہ سیدھی دل سے تم پکڑو۔ کرے طاغوت کا انکار ایمان رب پہ جو لائے، کرے طاغوت ہاں، کا انکار ایمان رب پہ جو لائے، سہارا مل کیا گیا بات، مضبوط اس کو تھام لے دل سے، سہارا مل ہوں، گیا مضبوط اس کو تھام لے دل سے۔ کام لے دل سے، بڑا سبحان اللہ، مضبوط حلقہ ہے شکستہ ہو نہیں سکتا، بڑا سبحان اللہ، مضبوط حلقہ ہے شکستہ ہو نہیں سکتا، خدا ہے سننے والا اور وہی ہے عالم و یکتا، خدا کیا ہے بات، سننے والا اور وہی ہے عالم و یکتا، خدا ہے دوست ان بندوں کا لائے اس پہ جو ایمان، خدا ہے ہاں، دوست ان بندوں کا لائے اس پہ جو ایمان، وہ ان ہاں، کا حامی و ناصر وہی ارحم وہی رحمان، وہ ان سبحان کا اللہ، حامی و ناصر وہی ارحم وہی رحمان۔ بچاتا ہے وہی کفر و ضلالت کے اندھیرے سے، بچاتا ہوں، ہے وہی کفر و ضلالت کے اندھیرے سے، خدا کے حکم سے وہ روشنی میں آئے بے کٹ کے، خدا کے کیا حکم بات، سے وہ روشنی میں آئے بے کٹ کے، سبحان اللہ، نکالا ظلمتوں سے ہے ملا نور ہدایت ہے، نکالا ظلمتوں سے ہے ملا نور ہدایت ہے، یہ ہے فضل و کرم رب کا اسی کی ہے عنایت ہے، یہ ہے سبحان اللہ، فضل و کرم رب کا اسی کی یہ عنایت ہے، مگر جو لوگ کافر ہیں وہ ہیں طاغوت کے ساتھی، مگر جو لوگ کافر ہیں وہ ہیں طاغوت کے ساتھی، نکالے نور سے ان کو مسلط کر دے تاریکی، نکالے کیا بات، نور سے ان کو مسلط کر دے تاریکی، یہی اصحاب دوزخ ہیں ہمیشہ ہی رہیں گے وہاں، وہی اصحاب دوزخ ہیں ہمیشہ ہی رہیں گے وہاں، خدا کو چھوڑ کر ظالم بنے ہیں بندے شیطان، خدا کو اللہ، چھوڑ کیا بات، کر ظالم بنے ہیں بندے کیا شیطان۔ بات ہے، کیا بات، صدق اللہ علیہ وسلم، بہت بہت شکریہ سماعت فرمانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن دونوں بے راہیں شک، کھلی ہوئی ہیں، اور تنبیہ کر دی کہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے تو شیطان کے ساتھی بن جاؤ، اور اعتراض کرتے رہو قرآن پاک پر اور اللہ کے ساتھ جو کر رہے ہیں بے آج کل۔ شک، بے شک، بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابھی آپ بہت خوبصورت، تنویر پھول صاحب سے کلام پاک بھی سنے آپ نے اور منظوم قرآن۔ واقعی ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیا چیز
نہیں عطا کی. دنیا بالکل. کی ہر نعمت ہمارے لیے بے بہا قیمتی خزانہ ہے، مگر ہم انسان جو ہے گمراہی کے دلدل میں پھنس کر اللہ کو بھول گئے، بھول اور جاتے ہیں اللہ اور کی کرنے باتوں لگتے کو ہیں. بھول گئے، اللہ کے حالانکہ ہم اپنے حکموں کو دماغ بھول کو گئے. نہیں سمجھ سکے ہیں کہ ہمارا دماغ کیا ہے. اللہ ذرا تعالیٰ سا ایک سیکنڈ میں اللہ مل تعالیٰ جائے سب غائب ہو جائے. جی جی جو باتیں کرتے جی تھے بڑی بڑی. اللہ تعالیٰ نے وہ ایک آیت چھوٹی سی آیت کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم اس زمانے کے انسان خسارے. اگر اس تناظر میں ہم لوگ دیکھیں تو سب خسارے میں. سب کہاں خسارے. کہاں خسارے میں، اگر اس کی تشریح کی جائے، اس کے بارے میں بتایا جائے تو صبح تک ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی. ہاں بالکل بالکل. بہرحال ہم لوگوں کو بس بہر اتنے ہے ذخار کہ ہے یہ تو علم کا ظاہر ہے. ہاں جتنا بھی غور کریں ہاں تو ہاں ہاں ثابت نہیں ہو سکتی. اللہ کے حکم کو جو صحیح جو بس سچی بات ہے اس کو مان لے، جھوٹ سے بس پرہیز کریں، نیک بس. عمل کریں، لوگوں کی بالکل خدمت کرتے رہیں، پڑوسیوں کا دیکھتے رہیں، حسد و کینہ اور بغض سے دور رہیں. یہی ہے، یہی اصل زندگی ہے. اور یہ اسی کی زندگی جو ہے. ہے نا قرآن جو ہے نا اس میں پوری تفصیل سے بتا بھی رہا. پورے قرآن کو آپ پڑھ لیجئے تو یہی ساری باتیں آپ کو کہ بس یہ اللہ کے باتیں حکم اور کو مان جتنا کے جتنا آپ پڑھیں گے حضور جتنا صلی اللہ. غور کریں گے اتنی نئی باتیں کھلتی جائیں گی. تو آئیے میں اب اس کے بعد ایک ترانہ اردو پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد باضابطہ مشاعرے کا آغاز کروں گا. تو صدر کی اجازت سے میں ایک ترانہ اردو پیش کر رہا ہوں. سماعت ارشاد فرمائیں عطا کیجیے عطا کیجیے ارشاد. کہ کیونکہ آج جو اردو کے جو حال ہے وہ سمجھ رہے ہیں ہمارے ہندوستان میں، تو سمجھیے کہ اس کو سوتیلا پن کا جو سلوک کیا جا رہا ہے، اللہ یہ محافظ اس کا. یہاں ہم بھی طرف سے حالت جو ہے تو نا پاکستان میں اردو، بھی ہاں کچھ اب اتنی ہاں بہتر نہیں ہے لیکن خیر وہاں اتنی تو شیریں اتنی میٹھی زبان جو پوری دنیا میں اس کو بآسانی لوگ سمجھ لیتے ہیں، یار اس وہی ہے زبان کے رابطے کی ساتھ زبان کھلواڑ کسی کر. خاص علاقے کی نہیں ہے. ہاں تو وہ ہے کہ انڈیا میں اگر کہتے ہیں دیکھا جائے مسلمانوں تو کی یہ، زبان ہے اور یہاں کہتے ہیں کہ اور نہیں بھائی وہ جو جو بھی بولنے والے ہیں انڈیا سے اردو لائے کے ہیں وہ سمجھنے والے، زبان وہ نہیں. حالانکہ ظاہر ہے فلموں رابطے کی سے زبان ہے یہ تو فلموں سے اس کی تو اور بہت سن لیتے ہیں. اردو کی آبیاری فلموں کے ذریعے بہت ہوئی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. بالکل یہ اور بہت لوگ پہلے لوگ سب اچھے سے نہیں بولنا جانتے تھے، مگر ہندی فلموں کو دیکھ کر کے بار ہندی ہے کیا، وہ تو اردو ہے، اس سے بہت سارے اردو لوگ ہی ہے. اردو اس بولنا میں خط سیکھ گئے بدل جا. کے خام خواہ ہندی کر رہے ہیں. جی جی اگر جی اردو تو ہی آئیے کہیں میں نا تو ترانہ اردو پیش یونو کر میں اس رہا کا ہوں. نمبر اوپر چلا جائے گا پھر. بالکل. سماعت فرمائے کی ارشاد اجازت ہے. ہندوستان میں پیدا ہوئی میں، سارا چمن یہ میرا ہے. کیا کیا ہندوستان میں پیدا ہوئی میں، سارا چمن یہ میرا ہے. اس دھرتی کی بیٹی ہوں میں، سارا وطن یہ میرا ہے. کیا کہنا. سارا وطن یہ میرا ہے. خسرو کی میں چہیتی ہوں، اور غالب کی میں دلاری ہوں. کیا کہنا. خسرو کی میں چہیتی ہوں، اور غالب کی میں دلاری ہوں. میرو ولی چک بستو انیسو، داغ سے رکھتی یاری ہوں. بالکل یہاں بھی دیکھا نا علامہ میرو اقبال ولی چک فیض بستو ماشاء انیسو، اللہ اردو نظم. داغ سے رکھتی یاری ہوں. اقبال و نارائن ملا پنڈت، اقبال سب کی میں تو ماشاء اللہ. پیاری کیا ہوں. کہنا کیا کہنا. سب نے مجھ کو دل سے لگایا، گود میں سب کی میں تو پلی. کیا کہنا کیا کہنا. پھر بھی نہیں انصاف ملا ہے، کیسا گگن یہ میرا ہے. ہندوستان میں پیدا ہوئی میں، سارا چمن یہ میرا ہے. کیا بات. نواز کیا کہنا. اور یہ بات میں تو بھٹکتی پھرتی ہوں، بستی جنگل جنگل.
बस्ती बस्ती धूप जंगल में दिन भर चलती हूँ, सर पे नहीं है मेरे आंचल, तन्हाई में रोती हूँ, धुल जाता है आँख का काजल, कौन संवारेगा मुझको और कौन बनाएगा दुल्हन, गर्द तासुब किसने उड़ाई, मैला बदन ये मेरा है, हिंदुस्तान में पैदा हुई मैं, सारा चमन ये मेरा जब उर्दू है। पैदा हुई तो उसमें तो जाहिर है उर्दू माशाल्लाह। पूरा हिंदुस्तान एक ही था ना, जो आजकल पाकिस्तान लिख है, तो के पाकिस्तान तो बाद में हुआ, सजाते पूरा हिंदुस्तान में। हैं उर्दू में दिल के आंगन को अपने, लिख के सजाते हैं उर्दू में दिल के आंगन को अपने, सुन के गजल को साज पे सभी धुनते हैं तन मन को अपने, हिंदी मेरी बहना है, उल्फत में साजन को अपने, खत लिखती है उर्दू में ही, मांग के मुझसे कलमों कागज, रात की ये तन्हाई में, खत लिखती है उर्दू में ही, प्यारा वतन ये मेरा है, हिंदुस्तान में पैदा हुई मैं, सारा चमन ये मेरा है। बहुत आला, और ये बहुत आगे आला। माशाल्लाह, बहुत खूब। नेहरू ने भी मुझको पढ़ा है और पढ़ा है गांधी ने, सभी पंडित मुल्ला हिंदू मुस्लिम देश के सिख ईसाई ने, नारा दिया है आजादी का मिलकर हिंद के भाई ने, जिंदाबाद जो नारा है ये, रूह मेरी तो इसमें है, फिर भी प्यासी बैठी हूँ मैं, गंगो जमन ये मेरा है, इस धरती की बेटी हूँ मैं, सारा वतन ये मेरा है, हिंदुस्तान में पैदा हुई मैं, सारा चमन ये मेरा है। नवाज इस तरह बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। खूब, बहुत खूब। तरन्नुम दिया आप देखे ना, लाहौर में अंजुमन अहमद इस्लाम के मशाइख आइए होते थे, आइए, इमाम अब मैं इकबाल, इस हाली, कारवां सफदर को आगे आजाद, बढ़ाता हूँ। उमर हुसैन आजाद। और माशाल्लाह। अब तक तो हमारे मोबाइल पर 7 लोग आ चुके हैं। बहरहाल 5-5 गजलें सुनाएंगे तो 35 लोगों का काम हो जाएगा। जुमा है ज्यादा इसलिए हम लोग नहीं ज्यादा नहीं बैठ देखते हैं, सकते। क्वालिटी हम देखते हैं। 35 बहरहाल 35 तो मिनट है आइए, मैं मेरे इस शेर के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, पास। चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। कारोबार चले तो गए। आइए, मोहतरम फैज जलील साहब को इस शेर के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ। आप बेहतरीन मुतरन्निम आवाज में गजल सुनाते हैं, पढ़ते हैं, बहुत ही उम्दा शेर गाते हैं, माशाअल्लाह। और बड़ी ही मेरे दिल जमे के साथ बैठते भी हैं और सुनते सुनाते भी, और हर मुशायरे में शरीक भी होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आइए तो फैज जलील साहब। कोयल भाई से तो मिल गया, 35-40 साल से हमारा रब्ता है पाकिस्तान जी। से। इनकी कैसेट आई थी, नातिया कैसेट, तो उसके लिए मैंने नाम कही थी, बस जलील नक्शबंदी लिखते थे तरन्नुम भी ना एक हुनर है, सबको नहीं होता, ये भी गॉड गिफ्ट। तरन्नुम में पढ़ना भी चलिए, बहुत अरशद राही साहब भी आ गए, राजा साहब भी हैं, माशाल्लाह। आ रहे हैं जा रहे हैं लोग। हाँ, अरशद राही साहब और राना साहब।
और हमारे ये भाई रहमान अमजद मुराद ईशा की साहब, ये भी नमाज पढ़ बड़ी के शामिल हो। पाबंदी से आते हैं, बहुत मुखलिस आदमी है माशाल्लाह। जनाब हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया सर। उर्दू से मोहब्बत, दीन से भी लगाओ इनको, बहुत थैंक यू। जी जी जी। मुझे याद है, बहुत मुखलिस और बहुत ही मोहब्बत करने वाले दीन आदमी। से लगाओगे अच्छा, तो इनका पेशानी से ना साबित कर दे रहा हाँ है, बिल्कुल इनकी बिल्कुल बिल्कुल। पेशानी जो है ना साबित कर दे रहा है कि दीन माशाल्लाह पे बिल्कुल, माशाल्लाह। माशाअल्लाह। सर मेरी पेशानी की उम्र 55 साल है। अच्छा, ये सब असासा है हमारा, फैज भाई, जी रहमान अमजद भाई, और ये अपने अली अहमद शाह साहब, ये अपना कुछ क्या पान खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं? और राही साहब, रईस भाई तो रईस भाई हैं, निगार बानो साहब सभी माशाल्लाह। असले दो खिदमत तो हजार सभी लोग कर रहे हैं, दो हजार मगर बीस के माल हम दूसरा सब कोई ले जाते हैं। ये फैज भाई आपकी हमारे यहाँ वो हिंदुस्तान म्यूट है, फैज भाई वो जी। माइक खोल लीजिए, माइक म्यूट है। हाँ। अस्सलाम हाँ वालेकुम चलिए रहमतुल्लाह ऐसा। तमाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आइए। गजल पेश की खिदमत है। क्या काम आइए मनोवर जहाँ साहबा भी आ गए माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वालेकुम वबरकातुहू। मनोवर बहन भी आ गई माशाल्लाह। जी इस मुशायरे में सब लोग आराम से खा पी के आराम से सो को सब आते हैं। ये भाई और रात 12 बजे तक हाँ, चलता और भी है। मुशायरे नहीं थे ना आज। हाँ, मतलब यहाँ तो हाँ बिहार में 12:30, यहाँ तो काफी देर होगी, 12:30 बजे तो भरी होने वाली है, 1 बजे हाँ, आपके अजान यहाँ हो तो जाएगी, नमाज शुरू हो जाएगी। 1 बजे अजान शुरू शुरू जी हो जी हम्म। चलिए ठीक। तो जी जी। साहिब इरशाद फजल की जमील इजाजत साहब। है, भाई इरशाद, इजाजत है। जी 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 इरशाद, हाँ हाँ अता कीजिए, इरशाद इरशाद अता इरशाद। कीजिए, अता कीजिए। क्या काम मंजिलों को दिले तिश्ना काम से लिपटे हुए हैं साये बेनंगो नाम से। क्या कहना, क्या वाह वाह, क्या सुभान बात, अल्लाह, कहना, वाह। सुभान अल्लाह। वाह, लिपटे हुए हैं साये बेनंगो नाम से। क्या कहना, क्या कहना। क्या बात। अक्लो खिरद हाँ अक्लो खिरद के रास्ते बेहद तवील क्या हैं। कहना। क्या बात। वाह वाह, अक्लो खिरद के रास्ते बेहद तवील हैं। आवाज दे जरा मुझे दिल के मकाम से। क्या कहना। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आवाज दे जरा मुझे दिल के मकाम से। क्या कहना। फूल भाई का नाम आ रहा है इस शेर में हाँ माशाल्लाह। हर फूल के जमाल में तेरा ही अक्स है। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। हर फूल के अदब। हर फूल के जमाल में फूल भाई जमाल वाले में काम। तेरा ही अक्स है। क्या बात है। मोहब्बत। बहुत शुक्रिया। हर फूल के जमाल आवाज रुक गई। में तेरा ही अक्स है। आवाज रुक गई थी। गुलशन हुआ है आशना तेरे मकाम से।
अम्बिया क्या कहना है? माशा अल्लाह आवाज नहीं आ सुभान रही? अल्लाह। अच्छा, अरे आवाज आ यार, रही है। माशा अल्लाह। सुभान अल्लाह। गुलशन हुआ है आशना तेरे मकाम से। शेर क्या अर्ज बात। है, क्या उस वक्त मुझको अपनी फना पर यकीन हुआ। उस वक्त मुझको अपनी फना पर यकीन हुआ। अल्लाह पर यकीन हुआ। आवाज कोई दे गया जब तेरे नाम से। क्या कहना, वाह क्या बात, वाह। क्या कहना। आवाज कोई दे गया जब तेरे नामों से। बहुत शुक्रिया बाप, गौर कीजिए शेर पे, शेर पे। हाँ, इरशाद। सीखा सीखा सबक हयात ने पे हम शिकस्त से। सीखा सबक हयात ने पे हम शिकस्त से। मशरूत मेरी मंजिलें अमले दवाम से। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या वाह। कहने हैं? बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। मशरूत मशरूत मेरी मेरी मंजिले। क्या कहना। अमले दवाम से। क्या कहना। मक्ता शेर अर्ज है। शाद शाद। कोई समर न छाऊं तेरी जात से मिली। क्या कहना। हाँ, कोई समर न छाऊं तेरी जात तेरी से से मिली। क्या फायदा जमीन पर तेरे कयाम से। क्या बात है, वाह 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 क्या कहने हैं? वाह। वाह वाह। वाह, कयाम से। कोई समर न छाऊं तेरी जात से मिली। क्या बात। क्या फायदा जमीन पर तेरे कयाम से। हमसे क्या कहना, क्या कहना। वाह, हुजूर मख्तार है। शाद। इरशाद। ये फैज मेरा पड़ाओ इन्हीं रास्तों में है। ये फैज मेरा पड़ाओ इन्हीं रास्तों पे में है। ये फैज मेरा पड़ाओ इन्हीं रास्तों में है। क्या बात। जाना है किसके पास मुझे वक्त शाम से। क्या बात, वाह वाह। क्या कहने हैं? बहुत शुक्रिया ममजद है। जाना है किसके पास? वाह वाह। जाना है किसके पास मुझे वक्त शाम क्या से। क्या काम मंजिलों को दिले तिश्ना काम से। वाह 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 वाह। उठे हुए है साये
दे नंगो नामुसी। क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह वाह, बहुत बहुत उम्दा आला, गजल, बहुत माशाल्लाह। बहुत आला, मस्त। माशाल्लाह। बड़ी लहने दाऊदी के साथ आप गजल पेश कर रहे थे और हम माशाल्लाह, लोग समाज माशाल्लाह फरमाने। माशाल्लाह। बहुत उम्दा, सुभान अब मैं अल्लाह। चलता हूँ। माशाल्लाह, जेबी बहन में हाँ, तशरीफ ले आई, इकबाल गौर साहब भी आ जी गए जी। होंगे, भाई इकबाल। अब मैं चलता हूँ दिल्ली की जाने। दिल्ली की खूबी ये रही कि हर जमाने में हमेशा हर चीज के हर के ताल्लुक से मरकजियत हासिल रही। शायरों के बेशक ताल्लुक से भी वहाँ दया रे गालिब, गालिब के और बहुत सारे शोरे जो है वहाँ पैदा हुए। मैं उसी दयार से मोहतरमा निगार बानो नाथ साहबा को दावत सुखंदर और शेर के साथ कि पीना पड़ेगा आबे अजल तुमको है निगार, पीना पड़ेगा आबे अजल तुमको है निगार, आबे बका का मिलना है मुमकिन नहीं यहाँ। तो आइए इस शेर के साथ, क्या क्या। इस शेर के साथ निगार बानो नाथ साहबा को मैं दावत दूँ। तमाम लोगों को सलाम पेश करती हुई वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। एक मतलब कुछ अशार यूं है कि ज़ईफ़ी से हुई बेनूर आंखें, ज़ईफ़ी से हुई बेनूर आंखें, थकन से हो गई है चूर आंखें। क्या ज़ईफ़ी कहने से हैं। हुई बेनूर आंखें, थकन से हो गई है चूर आंखें, वाह हसरत वाह से वाह वाह। हुई है दूर आंखें, हसरत से हुई है दूर आंखें, कि लिखने पढ़ने से मजबूर आंखें, कि वाह वाह लिखने वाह, पढ़ने से मजबूर आंखें। क्या उन्हें कहने हैं। हासिल थी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उन्हें हासिल थी लफ्जों की बसीरत, उन्हें हासिल थी लफ्जों की बसीरत, जी हुई फिर यक बयक बेनूरा, हुई फिर यक बयक बेनूरा। क्या विरासत वाले की लोगों लड़ाई की में आप उलझ कसी कर, कर रही बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। विरासत की लड़ाई में उलझ कर बड़ी बेफैज है मगरूर आंखें, अभी हम बड़ी बेफैज है मगरूर आंखें, बहुत शुक्रिया। सभी अपने मकासद में मगन है, सभी क्या बात। अपने मकासद में मगन है, मेरी किस्मत में है रंजूर आंखें, जो हाय मेरी हाय, क्या किस्मत बात। में है रंजूर क्या आंखें। कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शरीफों का नहीं दिल में कोई, शरीफों का नहीं दिल में है कोई, शरारत में हुई मशहूर आंखें, मशहूर आंखें। वाह शरारत में हुई मशहूर आंखें। अच्छा, मेरे बहुत पीछे मसाइल सैकड़ों, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे पीछे मसाइल सैकड़ों हैं, मगर तकती रही मजबूर आंखें, मगर तकती क्या वाह कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। वाह। किसी नन्ही सी टहनी की तलब में, किसी नन्ही सी टहनी की तलब में, परिंदे की हुई बेनूर आंखें, परिंदे की हुई बेनूर आंखें। निगार इस भीड़ में हिरसो हवस की, निगार इस भीड़ में हिरसो हवस की, अकेली हो गई भरपूर आंखें, अकेली हो गई भरपूर आंखें। ज़ईफ़ी से हुई बेनूर आंखें, थकन से हो गई है चूर आंखें, बसारत से हुई है दूर आंखें, कि लिखने पढ़ने से मजबूर आंखें। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, बहुत क्या कहने। क्या कहना। बहुत ही मुरस्सा गजल आप पेश कर रहे थे, माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा गजल। आइए मैं फिर एक मोहतरमा साहबा की तरफ चल रहा हूँ जिनके साथ कुछ मजबूरियां हैं बहुत ही मैंने इस तरह से जो काम कर रही है अदब में, मेरा ख्याल ये है कि एक आने वाले दिनों में एक तारीख बनकर रहेगी और अपने अदालत के बिना पर भी और सेहत की खराबी की वजह कर भी हर मुशायरे में शिरकत करते रहती है और सबों को जोड़ते रहती है। और 5-6 सालों से जब से हमारी मुलाकात इनसे हुई है, मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से ये धुन और लगन के साथ काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। मैं उन्हें इस शेर के साथ दावत सुखद दे रहा हूँ कि अपने माहवर से ये हट जाएगा फौरन देखो, अपने माहवर से ये हट जाएगा फौरन देखो, आबे इस्तादा पे पत्थर नहीं फेंके कोई, आबे इस्तादा पे पत्थर नहीं फेंके कोई, और आप पाशी जब न होगी ज़हन के इस खेत में, आप पाशी जब न होगी ज़हन के इस खेत में, फस्ल कोई उग सकेगी किस तरह तहजीब की,
तो तहजीब के उगाने वाले शायरा जनाब मोहतरमा ज़ैबुन्निसा ज़ैबी साहब से मैं तनवीर भाई आपकी जी क्या कह रही हैं? खुश आमदीद। 2019 से ऑनलाइन मुशायरे में आप हम लोगों को टान रही हैं। जी बिल्कुल आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जब खुदा ही से तेरे जुल्म का शिकवा न किया, जब खुदा ही से तेरे जुल्म का शिकवा न किया, फिर किसी से भी शिकायत नहीं की जा सकती। क्या बात है, कहाँ शिकवा न किया, फिर किसी से भी शिकायत नहीं की जा सकती। क्या कहना मेरा मसलक नहीं शेरों में कसीदे लिखना, मेरा मसलक नहीं शेरों में कसीदे लिखना, फन अमानत है खयानत नहीं की जा सकती। एक गजल और फिर एक छोटी सी नज़्म पढ़ूंगी। वाकिफ नहीं है बिल्कुल वो मेरी सादगी से, वाकिफ नहीं है बिल्कुल वो मेरी सादगी से, बेवजह रहा है वो मेरी बरहमी से। वाकिफ नहीं है बिल्कुल वो मेरी सादगी से, बेवजह डर रहा है वो मेरी बरहमी से। चेहरे तो खुशनुमा है दिल है सियाह लेकिन, ये बेज़मीर कब है आगाह जिंदगी से। सुभान अल्लाह। चेहरे तो खुशनुमा है दिल है सियाह लेकिन, ये बेज़मीर कब है आगाह जिंदगी से। हम दोस्त जानते थे जिसको उसी ने देखो, हम दोस्त जानते थे जिसको उसी ने देखो, छुपकर किया है हम पर एक बार बुज़दिली से। हम दोस्त जानते थे जिसको उसी ने देखो, छुपकर किया है हम पर एक बार बुज़दिली से। पीरी ने सब कवा अब बेजान कर दिए, पीरी ने सब कवा अब बेजान कर दिए हैं, जीने को जी रहे हैं सुस्ती से बेदिली से। क्या पीरी ने सब कवा अब बेजान कर दिए हैं, सही सही जीने को जी रहे हैं सुस्ती से बेदिली से। है अमन के लबादे में जुल्म के पुजारी, है अमन के लबादे में जुल्म के पुजारी, बेहिस है ये सभी जो लड़ते हैं बेहिसी से। मकता है आंखों में बर्बरियत हाथों में आतिशी बम, आंखों में बर्बरियत हाथों में आतिशी बम, बाज़ाए अहद नौ इस तेरी रोशनी से। आंखों में बर्बरियत हाथों में आतिशी बम, बाज़ाए अहद नौ हम इस तेरी रोशनी से। और बकता है ऐसे कभी किसी ने जीता है दिल किसी का, ऐसे कभी किसी ने जीता है दिल किसी का, बस वक्त कट गया है यूं ये भी दिल लगी से। वक्त कट गया है वाकिफ है बिल्कुल वो मेरी सादगी से, बेवजह डर रहा है वो मेरी बरहमी से। और पेश कर देती हूँ सब्र तहम्मुल की ताकत है, इसका नाम है। अल्लाह के बरगज़िदा बंदे भी हसद और शर की जद में रहे, हासिदों के वार खतरनाक होते हैं, मुखालिफिन के खिलाफ तो जवाज नहीं होते, तहम्मुल सब्र ज़ब्त ही उनका जवाब, तहम्मुल सब्र ज़ब्त ही उनका जवाब है। आलमाने फिक्र दानिश ने क्या क्या सऊबतें झेली, जब भी इल्म और हिकमत की बात करते थे हासिदीन के चेहरे उतरते थे। वो कच फहम कच बहस झूठी दलीलों से
हिजरों के पहलू निकालते थे, तमस्कुर उड़ाते थे, शर्तें लगाई जाती थी। अब की बार सब्र जब्त तोड़ कर रहेंगे, गुस्सा दिलाते रहेंगे। अच्छा, ये सारे मजलिस दौरान गुफ्तगू तज़हीक करते, गालियों पे उतर आते। रोज एक हासिद ने तहिया कर लिया, आलिमे फहमो दर्राक का जब्त तोड़ कर रहूंगा। एक हासिद ने तहिया कर लिया, आलिमे फहमो दर्राक का जब्त तोड़ कर रहूंगा। आज उनको गुस्सा न दिलाया तो मैं अपने माँ बाप से नहीं, यही सोचता हुआ चल पड़ा। वो हासिद बारहा अपने शैतानी तर्ज अमल से आलिम को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर चुका था। आज उसके दिमाग में एक नई शर्ंगेजी उभरी। वो दिल में मंसूबे बना रहा था कि आज तो जरूर गुस्सा आएगा, जब्त टूटेगा, जब्त टूटेगा, तहम्मुल सब्र बिखरेगा और मैं अपनी शर में कामयाब हूँगा। आलिम के सामने जाकर बड़े तबस्सुर से बोला, आपके वालिद तो दुनिया से सिधार गए, अपनी माँ का निकाह मेरे साथ कर दो, मैं उनका पैगाम लाया हूँ। इमाम अबू हनीफा का इतना सख्त जुमला, ये तो माँ की गाली जैसी बात थी। माँ वो भी 80 बरस की, आंखों में खून उतर आए, कलेजा फट जाए, नींदों में छेद हो जाए, सारी उम्र नींद न आए, रूह पहरा पारा होकर बिखर जाए। कुछ بعید नहीं माँ की बेहुरमती पर कत्ल तक नौबत पहुंच जाए। आलिम के साथियों ने तलवारें नियाम से निकाली। आपने कहा ठहर जाओ। गुस्से में ऐन मुमकिन था हासिद का सर लम्हे भर में कदमों में आ जाता। आलिम ने सब्र तहम्मुल हौसले की मिसाल कायम की। कुछ लम्हे सोचा, बात तो शरई थी। बोले, मेरी वालदा आमला आकला हैं, वो अपने फैसले में आजाद हैं, उनकी रजा जरूरी है, मैं उनकी राय पूछकर बताता हूँ, वो राजी हो तो मुझे अच्छा लगेगा। हासिद जवाब सुनकर थर थर कांपने लगा, जबान गुंग हो गई, सांस उखड़ने लगा, लफ्ज गले में अटक गए, बोलना चाहा बोल न पाया, माफी की मोहलत भी न मिल सकी। वो तो सोचे बैठा था, मैं तो जलील करने आया हूँ, मैं तो जलील करने आया हूँ, आलिम की रुसवाई साथ लाया हूँ, मगर ये क्या माजरा हुआ, सारा मामला उल्टा हुआ। देखते ही देखते वो हाथों जमीन पे गिर पड़ा, लौटने लगा, तड़पने लगा, कलेजा फट गया, जिस्म की रग रग से खून रिसने लगा, लम्हे भर में रूह से परवास कर गई। लोग दम्बा खुद थे, सहमे खौफज़दा। पूछा, मोहतरम इसे क्या हुआ? बोले मेरा सब्र इस पे पड़ गया, मुझे लावारिस समझा था, भूल बैठा था, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मेरा इंसाफ मेरा अल्लाह है, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मेरा इंसाफ मेरा अल्लाह है। हासिदों के शर से बचाए मेरे खुदा, हासिदों की नीयतों का कुछ नहीं पता, हासिदों की सोबत भी एक अजाब है, उनके शर से खुद उनकी दुनिया भी खराब है। हदीसे नबी है, हमारी पहचान हमारी सोबत से, नेक लोगों की सोबत नेकी, बुरे लोगों की सोबत बदी, मालो शोहरत मनसब दोस्तों के हल्के, मवाजना मुकाबला करना कुछ नहीं होता, कद एड़ी उठा लेने से तवील कामत नहीं बनता, हम जो है वही उसकी इनायत है, हम जो है वही उसकी इनायत है। हसद और शर से किसी का मर्तबा अजमत मालो सरवत छीनना मुमकिन नहीं, तो फिर मवाजना मुकाबला हसद सरंगेजी जीतना कैसा? हासिद अपनी मौत आप पड़ता है, जिल्लत की गहराई में गिरता है। या रब हमें हसद से बचाना, हमारे दौलत हमें दिलाना, फिर तेरी ही रजा पे उठे हमारा कदम, बदले इंतकाम की आदत से बचाना, नेक सीरत आला से मिलाना, राह जो हो उस पे चलाना। सब्र तहम्मुल अकमल है, सब्र तहम्मुल की ताकत से अकमल बनाना। या रब अपने की पर्दादारी तलब मांगते हैं, तेरी कुर्बत तेरी मोहब्बत की सनद मांगते हैं, जो खताएं मग़फ़िरत मांगते हैं, सबकी तौबा मग़फ़िरत मांगते हैं। बहुत ही उम्दा नज़्म और इस्लाही नज़्म, बहुत उम्दा नज़्म।
मुतासिर लगता है। जैबुन्निसा जैबी साहब से आप समाप्त फरमा रहे थे। सर रईस भाई मुझे बुला लीजिएगा, 10 मिनट रह गए मेरे पास। जी जी जी। दरमियान में तनवीर भाई अच्छा, एक दफा गजल सुन लिया करें जुमा है सबकी ना, मौजूदगी जुमा है में। इसलिए जी, 10 जी। मिनट। अच्छा अच्छा जी, नमाज पढ़ के आ आधा दिन जाइए। है ना, 10 मिनट रह के निकल रहे हैं। तो नहीं तनवीर भाई को सुन ले आपके तनवीर भाई को। हाँ हाँ चलिए, तो आइए अब मैं आपके सामने एक ऐसे शायर को पेश कर रहा हूँ जो हमारे मुशायरे की सदारत कर रहे हैं। शुरुआत में आपने हमदिया और कलाम मंजूम से भी इफ्तिताह कर दिए। आज जुमा का दिन है, वो अभी नमाज के लिए जाएंगे। मैं उन्हें इस शेर के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ कि तिश्नगी अपनी कोई कैसे बुझाए रूह की, तिश्नगी अपनी कोई कैसे बुझाए रूह की, आबेजू इखलास की सूखी पड़ी है आजकल, आबेजू इखलास की सूखी पड़ी है आजकल, और आबे हयात मुझको अगर हो कभी नसीब, आबे हयात मुझको अगर हो कभी नसीब, पीकर उसे मैं कर लूं हयात अपनी दायमी। तो दायमी पर नजर रखने वाले शायर, मैं उन्हें तनवीर फूल साहब को दावत शुक्र दे रहा हूँ क्या है, और अपने उम्दा कलाम से हम सामीन को मौजूद करूँ। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई, और आप सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि और पहले दो रुबाइयात पेश करता हूँ। ये मरहूमा शायर बम्बई में ये मार्च 2003 में रुबाइयात में से दो पेश करता हूँ। समाज फरमाइए। ये बात अजल से रहे ताब आबद, ये बात अजल से रहे ताब आबद, जो इश्क में डूबा उसे मिलती है मदद। ये बात अजल से रहे ताब आबद, जो इश्क में डूबा उसे मिलती है मदद। पा लेता है वो मंजिल मकसूद मान, पा लेता है वो मंजिल मकसूद मान, महरूम अमल इश्क के आगे है खिरद, महरूम अमल इश्क के आगे है खिरद। और एक और भाई मायना शायरी। इस कारगहे जीस्त में जो आता है, इस कारगहे जीस्त में जो आता है, पिछला न कोई नाम निशान पाता है। कारगहे जीस्त में जो आता है, पिछला न कोई नाम निशान पाता है। क्या अक्ल से इस अमर का लगता है सुराग, क्या अक्ल से इस अमर का लगता है सुराग, इस दुनिया से इंसान कहाँ जाता है। बहुत अच्छे, वाह वाह इंसान कहाँ जाता है, मतलब अकल से नहीं पता लग सकते कि हम कहाँ से आए और कहाँ गए, कुछ नहीं पता चलता है जब तक कि हम वही करता है। हमें नहीं पता। एक मुख्तसर सी गजल है सात शायर की, तो जरा इसकी कवाफी देखिए, कवाफी के मुख्तलिफ है गैर मखसूस से। तो ये सब बात फरमाइए। खौफ से हर शजर का दिल धड़का, खौफ से हर शजर का दिल धड़का, मौसम आया जहां में पतझड़ का। खौफ से हर शजर का दिल धड़का, मौसम आया जहां में पतझड़ का। और लोग जलते हैं और कुड़ते हैं, देवी बहन कह रही थी ना, लोग जलते हैं और कुड़ते हैं, जब चमकता है लाल भूतड़ का। लोग जलते हैं और उड़ते हैं, जब चमकता है लाल गुदड़ का। आदम और रूह को मिल गई है आजादी, रूह को मिल गई है आजादी, एक तायर कफस में है फड़का। रूह को मिल गई है आजादी, एक तायर कफस में है फड़का। आदम और ये आजकल के हालात पर तासुब है। फूंक डालेगा नखल मिल्लत ये, फूंक डालेगा नखल मिल्लत ये, शोला कौमियत अगर भड़का। कौमियत कौम में फर्क है, जो है मिल्लत इस्लामिया, मिल्लत ज्यादा वसी लफ्ज है, दोनों आया कुरान में। कौम भी आया, कौम तो छोटी छोटी है सब, तो कौमियत पे ना मिल्लत को देखें। फूंक डालेगा नखल मिल्लत ये, शोला कौमियत अगर भड़का। दिल गरीबों का तोड़ देते हैं, दिल गरीबों का तोड़ देते हैं, जैसे तोड़े घरौंदा एक लड़का।
दिल गरीबों का तोड़ देते हैं, दिल गरीबों का जैसे तोड़ देते तोड़े घरौंदा एक लड़का। और दूसरे मक्ता शेर पीछे है। से आवाज पता नहीं कहाँ से आ रही है, किसी का माइक खुला हुआ है। कहीं से खुला हुआ है। बंद कीजिए भाई आप लोग, किसका माइक खुला हुआ है। दिल गरीबों का तोड़ देते हैं, जैसे तोड़े घरौंदा एक लड़का। और एक दोशीज़ा देखी बस्ती में, एक दोशीज़ा देखी बस्ती में, जैसे कोई कवल हो कीचड़ का। एक दोशीज़ा देखी बस्ती में, जैसे कोई कवल हो कीचड़ का। मकता है फूल गुलरू आ गया शायद, फूल गुलरू आ गया शायद, कोई पत्ता चमन में है खड़का। कोई पक्का चमन नहीं खड़ा आ गया शायद, नाजुक कोई शेर। पत्ता चमन में है खड़का। खौफ से हर शहर का दिल धड़का, मौसम आया जहां में पतझड़ का। आजादी बहुत खूब, वाह वाह, तपस में है भड़का। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, एक ताया तपस में है फड़का। बहुत। मिल्लत ये चोला है कौमियत अगर भड़का, चोला है कौमियत अगर भड़का। शुक्रिया साहब, क्या बात है। तनवीर फूल साहब, बहुत ही मुश्किल काफिया में आपकी गजल समाप्त कर रहे थे। और गजल से पहले दो भी सुनाए। रुबाई जो सिंफ है बड़ी मुश्किल तरीन सिंफ है। कहा जाता है कि जो रुबाई का लेता है वो सारे सिंफों पर तबादमाई कर सकता है, चाहे वो गजल के नज्म हो, कतात हो, रुबाई। तो आइए अब मैं आपके एक ऐसे शायर के दयार में चल रहा हूँ जो गजल के फन से वाकिफ है और गजल को पेश करने का हुनर जानते हैं। मैं उन्हें इस रुबाई के शेर से दावत सुखन दे रहा हूँ कि अल्फाज को तलवार बना देता हूँ, अल्फाज को तलवार बना देता हूँ, जंजीर को झनकार बना देता हूँ। फन जानता हूँ मैं भी गजल कहने का, सहरा को मैं गुलजार बना देता हूँ। इस शेर के साथ रहमान अहमद अमजद बुरा साहब को पेश कर रहा हूँ। क्या पाए और अपनी गजल। क्या बात, बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह। सदर महफिल की इजाजत से अच्छा अर्ज किया है कि जितने पत्थर हैं सभी मुझ में लगाते जाओ, जितने पत्थर हैं सभी मुझ में लगाते जाओ, मुझे दीवार की मानिंद उठाते जाओ। मुझे दीवार की मानिंद उठाते जाओ, मेरे चेहरे को पढ़ो एक कहानी की तरह। क्या बात। मेरे चेहरे को पढ़ो एक कहानी की तरह और जज्बात की तस्वीर बनाते जाओ। मेरे चेहरे को पढ़ो एक कहानी की तरह और जज्बात की तस्वीर बनाते जाओ। या मुकद्दर में अपना इजाफा कर दो, या मुकद्दर में मेरे अपना इजाफा कर दो, या मेरे हाथों की तहरीर मिटाते जाओ। या मुकद्दर में मेरे अपना इजाफा कर दो, या मेरे हाथों की तहरीर मिटाते जाओ। और एक के बाद करो एक अंधेरे में शगाफ, एक के बाद करो एक अंधेरे में शिगाफ, एक के बाद दिया एक जलाते जाओ। क्या बात है, क्या बात, बहुत शुक्रिया। एक के बाद करो दिया एक जलाते जाओ। क्या बात, एक के बाद दिया एक जलाते जाओ। और आज दस्तार की कीमत है किसी सर की नहीं। क्या बात, आज दस्तार की कीमत है सर की नहीं। मेरा दस्तार काटते जाओ। मेरा सर काट के दस्तार
चुराते जाओ। क्या क्या बात की आपने, क्या इक़्तिदार के भूखे सरदारी के भूखे एक बहुत शुक्रिया। दस्तार चुराते आज दस्तार की कीमत किसी सर की नहीं, मेरा सर काट के दस्तार चुराते जाओ और मेरे माथे पे सितारे की जगह खाली है। मेरे माथे पे सितारे की जगह खाली है, अपने हाथों से कोई दाग सजाते जाओ। मेरे माथे पे सितारे की जगह खाली है, अपने हाथों से कोई दाग सजाते जाओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब मफ्तार है जी कि बड़ा चुपचाप सा गुमनाम सा रास्ता हूँ मुराद, बड़ा चुपचाप सा गुमनाम सा रास्ता हूँ मुराद, इल्तिजा है कि मेरी खाक उड़ाते जाओ। बड़ा चुपचाप सा गुमनाम सा रास्ता हूँ मुराद, इल्तिजा है कि मेरी खाक उड़ाते जाओ और जितने पत्थर हैं सभी मुझ में लगाते जाओ, मुझे दीवार की मानिंद उठाते जाओ। बहुत शुक्रिया। आपका कराया रईस साहब भाई उसी मुनासबत से आपने गजल पेश की। अच्छा रईस भाई, मैं इजाजत चाहता हूँ, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि साइन किसको आपको कर दूं, कंट्रोल दे दूं आपको? वो पूछ रहे हैं कंट्रोल किसे देना है, वरना बंद हो जाएगा पूरा। फिर आपको दूं या और किसी मुनव्वर बहन का दे दूं जो लोग बैठे हैं? किसको? भाई साहब को दे दिया। भाई साहब भी जाके नमाज पढ़ना ना। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ वही तो चक्कर, अमेरिका वालों तो नहीं खुद देना ही है। हम मनोवर बहन शायद बैठ जाए अगर ये घर पे नहीं तो, और किसी को बोले आपको दूं, बताइए जल्दी जल्दी तय कीजिए किसको देना है। मैं चाहूंगा बंद हो जाएगा फिर। अरे भाई किसी को दे दीजिए ना। किसको? तो इकबाल गौहर साहब को दे, इकबाल गौहर साहब को बैठेंगे ना पूरे इकबाल गौहर साहब को। सही, आप संभालिए कंट्रोल। अब मैं हाँ अब कार्रवाई को आगे बढ़ा। ठीक है, मैंने इकबाल गौहर साहब को कर दिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज। एक बात, अब मैं हमारे मुशायरे में ऐसे भी शायर हैं जो खामोशी के साथ सबों के अशार और गजल सुनते रहते हैं माशाल्लाह, और अपने जहनों में उतारते रहते हैं। मैं उन्हें इस शेर के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ कि जिंदगी कैसी गुजरती है ये तन्हा बोलिए, जिंदगी कैसी गुजरती है ये तन्हा बोलिए, कुछ नहीं वो बोल पाए आप दीदा हो गए। तो आइए शेर के साथ मैं मोहतरम इकबाल गौहर साहब को दावत सुखन दे रहा हूँ कि आप अपनी मुरस्सा गजल से हम लोगों को समाज मौजूद करें। आइए इकबाल साहब। अच्छा साहब, अब तो मैं इजाजत किससे लूं? बहरहाल हलीम साहब है, हलीम साहब से लीजिए। हलीम साहब सदर इजाजत याफ्ता है जी। मैं तमाम दोस्तों से इजाजत चाहते हुए अभी 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 सदारत हमारे हलीम साहब कर रहे हैं। हलीम साहब आ गए। पता फरमाइए जी। हलीम साहब सीनियर आदमी है भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हलीम साहब, मैं इजाजत चाहता हूँ आपसे। अता फरमाइए हजरत। किया है कि मैं ताक यूं तो जहां के कई हुनर में हूँ। क्या बात। मैं ताक यूं तो जहां के कई हुनर में हूँ,
मगर गजल से ही तकदीर के भंवर में हूँ। मगर गजल से ही तकदीर के भंवर में हूँ। और सफर थी शर्त सो महवे सफर हूँ मुद्दत से। सफर थी शर्त सो महवे सफर हूँ मुद्दत से। ये अलमिया है कि फिर भी मैं घर के घर में हूँ। ये अलमिया है सफर थी शर्त सो महवे सफर हूँ मुद्दत से। ये अलमिया है कि फिर भी मैं घर के घर में हूँ। ये अलमिया है कि फिर भी मैं घर के घर में हूँ। समाप्त कीजिएगा से कि समुंदरों की तहों सतह आब पर हूँ कभी। समुंदरों की तहों सतह आब पर हूँ कभी। एक आबदोज की मानिंद बस सफर में हूँ। एक आबदोज की मानिंद बस सफर में हूँ। अब किराएदार की मानिंद सारी उम्र कटी। किराएदार की मानिंद सारी उम्र कटी। क्या बात। अजीब वहम था जैसे मैं अपने घर में हूँ। अजीब वहम था, अजीब वहम था जैसे मैं अपने घर में हूँ। क्या बात। और समझे चाहूंगा इस शेर पर। जी पता क्या। बस एक बार कभी हंस लिया था क्या खुल कर। बस एक बार कभी हंस लिया था क्या खुल कर। तभी से जीत की मैं खशमगी नजर में हूँ। तभी से जीत की मैं खशमगी नजर में हूँ। बस एक बार कभी हंस लिया था क्या खुलकर। तभी से जीत की मैं खशमगी नजर में हूँ। तभी से जीत की मैं खशमगी नजर में हूँ। नजर में क्या आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। और भाई खशमगी बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। जी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और कहाँ आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ से निकालोगे यार तुम मुझको। अच्छा मुनव्वर साहिबा मैं चाहूंगा शेर पर। कहाँ कहाँ से निकालोगे यार तुम मुझको। कहाँ कहाँ से निकालोगे यार तुम मुझको। तुम्हारे जहन ज़बां खून दिलो जिगर में हूँ। तुम्हारे जहन ज़बां दिलो जिगर में हूँ। मैं ताक दो तो जहाँ के कई हुनर में हूँ। मगर अजल से ही तकदीर के भंवर में हूँ। शुक्रिया। बहुत अच्छे बहुत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत फरमा रहे थे इकबाल गौहर साहब। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मेरे वजूद को संगे सितम से उल्फत है। मेरे वजूद संगे सितम से उल्फत है। मैं क्या समर हूँ कि सबकी नजर में रहता हूँ। क्या समर हूँ कि सबकी नजर में रहता हूँ। तो आइए इकबाल गौहर के बाद मैं दावत सुखन दे रहा हूँ मोहतरमा मनव्वर जहां साहबा को, जो शुरू से आप तशरीफ फरमा है। मैं उन्हें इस शेर के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ कि
اب کہاں جائیں بھلا تشنگی کے مارے لوگ، اب کہاں جائیں بھلا تشنگی کے مارے لوگ، آبیدار انسان کوئی اب نظر نہیں آتا، آبیدار انسان کوئی اب نظر نہیں آتا، ایمان والے لوگ ہی اس پر سوار تھے، کیسی تھی آب دوز وہ سیلاب دوہ میں۔ آئیے شیر کے ساتھ محترمہ منور جہاں صاحب جی بہت شکریہ، دے رہا ہوں کہ آپ آئیں۔ جی بہت شکریہ رئیس بھائی، بہت بہت شکریہ۔ اور چمکتے دمکتے 20 ستاروں کو منور جہاں کا السلام علیکم۔ اور صدر صاحب کی اجازت سے، السلام ورحمۃ اللہ، صدر صاحب کی اجازت سے ایک ربائی پیش کرتی ہوں، پھر غزل پیش کروں گی۔ زمانے میں ہمیں جو لوگ بھی مشہور ملتے ہیں، زمانے میں ہمیں جو لوگ بھی مشہور ملتے ہیں، تماشائے جہاں سے وہ بہت مشہور ملتے ہیں، تماشائے جہاں سے وہ بہت مشہور ملتے ہیں۔ ہمارے مال و زر جب سر پہ چڑھ کر بولتا ہے پھر، ہمارے مال و زر جب سر پہ چڑھ کر بولتا ہے پھر، وہ دولت کے نشے میں ہر گھڑی مخمور ملتے ہیں، وہ دولت کے نشے میں ہر گھڑی مخمور ملتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات، بہت شکریہ۔ میں غزل پیش کرتی ہوں۔ جی ارشاد۔ جب بھی جدائی کی بھی اس طرح گزاری جائے، شب جدائی کی بھی اس طرح گزاری جائے، ان کی قرطاس پہ تصویر اتاری جائے، اس کی قرطاس پہ تصویر اتاری جائے، شب جدائی کی بھی اس طرح گزاری جائے، دل اچھل کر میرا سینے سے نکل پڑتا ہے، دل اچھل کر میرا سینے سے نکل پڑتا ہے، اس کی جب بھی میرے آگے سے سواری جائے، جب بھی میرے آگے سے سواری جائے، شب جدائی کی بھی اس طرح گزاری جائے، حسب وعدہ وہ کبھی جب بھی چلا آتا ہے، حسب وعدہ وہ کبھی جب بھی چلا آتا ہے، تو مہینوں نہ میرے سر سے خماری جائے، مہینوں نہ میرے سر سے خماری جائے، جب جدائی کی بھی اس طرح گزاری جائے، ان کا ہر حکم ہے ایک شرط ہے منظور ہمیں، ان کا ہر حکم ہر ایک شرط ہے منظور ہمیں، چاہے اس کے لیے بھی یہ جان بھی ہماری جائے، اس کے لیے جان بھی ہماری جائے، جدائی اس طرح گزاری جائے۔ بہت شکریہ۔ خوشبوؤں کی بھی وہ خوشبو ہے گلابوں کا گلاب، خوشبوؤں کی بھی وہ خوشبو ہے گلابوں کا گلاب،
اس کو لینے کے لیے باد بہاری جائے، اس کو لینے کے لیے باد بہاری جائے، شب جدائی کی بھی اس طرح گزاری جائے، ماشاءاللہ کیا اول ہے یہی اس کی کرم سازی کی، شرط اول ہے یہی اس کی کرم سازی کی، بازی ضروری ہے کہ ہاری جائے، بازی ضروری ہے کہ ہاری جائے، اول ہے یہی اس کی گرم سازی کی، بات ہے ابا، بہت اچھا۔ بازی عشق ضروری ہے کہ ہاری جائے، جب جدائی کی بھی اس طرح گزاری جائے۔ نقطہ پیش ہے۔ بہت شکریہ آداب۔ اس کو اپنا ہی بنانا ہے تو ڈرنا کیسا، اس کو اپنا ہی بنانا ہے تو ڈرنا کیسا، اب منور بھلے ہی راہ میں ماری جائے، منور بھلے ہی راہ میں ماری جائے، جدائی کی بھی اس طرح گزاری جائے، اس کی کرتاس پہ تصویر اتاری جائے، جدائی کی بھی اس طرح گزاری جائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ابھی آپ منور جہاں صاحبہ نے ایک سما باندھ لیا وہاں کے بہترین ترنم میں، بہترین جو ہے نا آواز میں آپ غزل سرت تھی اور بہت ہی عمدہ غزل پیش کر رہے تھے، اور سارے لوگ لطف لے کر جو ہے نا وہ سن رہے تھے۔ آئیے میں اب ایک ایسے شاعر کی طرف چل رہا ہوں جو شروع سے تشریف فرما ہے، بڑی خاموشی کے ساتھ دعوت تحصیل پیش کر رہے ہیں۔ میری مراد محمد شیراز انجم لاہور صاحب سے ہیں۔ آئیے اپنا بیگ کھولیے، میں نے شعر کے ساتھ دعوت سفر دے رہا ہوں کہ چلیے کسی پہاڑ کی ہم سب کریں بھی سیر، چلیے کسی پہاڑ کی ہم سب کریں بھی سیر، ہے لطف جب اٹھانا کسی آبشار کا، ہے لطف جب اٹھانا کسی آبشار کا۔ تو آئیے شعر کے ساتھ محمد شیراز انجم لاہور، آئیے بیگ کھولیے شیراز انجم صاحب۔ جی السلام علیکم۔ آئیے غزل پیش کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے 5 منٹ دے دیجیے، تب تک کسی اور کو بلا لیجیے۔ جی 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 اچھا جی جی۔ تو آئیے اس کے بعد میں آپ کے جو ہے نا بہترین آواز میں جو ہے نا بہترین ترنم کے ساتھ پڑھنے والے شاعر جناب مفتی عیاض صاحب، پتہ نہیں آج ترنم سے پڑھیں گے کہ نہیں، میں انہیں شعر کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں کہ جب جب پڑھے گا تجھ کو چومے گے اس ورق کو، جب جب پڑھے گا تجھ کو چومے گا اس ورق کو، لکھوں گا کارنامہ میں آب زر سے تیرا۔ تو آئیے شعر کے ساتھ مفتی عیاض صاحب کو دعوت سخن۔ چونکہ ابھی جاب پہ ہوں تو ترنم سے تو نہیں پڑھوں گا، تحر سے پڑھوں گا انشاءاللہ کل کوشش کروں گا۔ آپ کی نظر ہے غزل کے جو دستے چشم سے، جو دستے چشم سے دل کے کواڑ کھولتا ہے، جو دستے چشم سے دل کے کواڑ کھولتا ہے، نفس نفس بھی عجیب بولی اس کی بولتا ہے، بولی اس کی بولتا ہے، جو دستے چشم سے دل کے کواڑ کھولتا ہے، نفس نفس بھی عجیب بولی اس کی بولتا ہے،
اور تمہارے حسن کا جب جب ملا کبھی ساغر، تمہارے حسن کا جب جب ملا کبھی ساغر، تو تشنہ دل میرا ساقی کے سنگ ڈولتا ہے، تو تشنہ دل میرا ساقی کے سنگ ڈولتا ہے، میں کیسے اس کے بھروسے کی آنکھ میں اتروں، میں کیسے اس کے بھروسے کی آنکھ میں اتروں، مجھے گمان کے میزان میں جو تولتا ہے، میں کیسے اس کے بھروسے کی آنکھ میں اتروں، مجھے گمان کے میزان میں جو تولتا ہے، اور اسی کے واسطے تعبیر آنکھ کھولتی ہے، اسی کے واسطے تعبیر آنکھ کھولتی ہے، جو خواب دوجے کی خوشیوں کی راہ رولتا ہے، جو خواب دوجے کی خوشیوں کی راہ رولتا ہے، اور خدا کرے کہ رہے بند نفرتوں کی کتاب، خدا کرے کہ رہے بند نفرتوں کی کتاب، خطوط پیار کے جس پیار سے وہ کھولتا ہے، خدا کرے کہ رہے بند نفرتوں کی کتاب، خطوط پیار کے جس پیار سے وہ کھولتا ہے، اور نہیں غرض کے سیاہ کار ہو کس درجہ، نہیں غرض کے سیاہ کار ہو وہ کس درجہ، ہر ایک شخص کی خاطر جو دل کو کھولتا ہے، ہر ایک شخص کی خاطر جو دل کو کھولتا ہے، اور اگر ہے اوج پر بیتابی کرم کے شب کی، اگر ہے اوج پر بیتابی کرم کے شب کی، تو پھر اندھیروں میں بتلائے کیا ٹٹولتا ہے، پھر اندھیروں میں بتلائے کیا ٹٹولتا ہے، میں آج کل جو کسی مقتدر کو دیکھتا ہوں، میں آج کل جو کسی مقتدر کو دیکھتا ہوں، تو خون میرا اسے دیکھتے ہی کھولتا ہے، تو خون میرا اسے دیکھتے ہی کھولتا ہے، عجب یہ پارا صفت سی خدا نے شے دی ہے، عجب یہ پارا صفت سی خدا نے شے دی ہے، ڈولنے کو ابھی تک یہ دل تو ڈولتا ہے، ڈولنے کو ابھی تک یہ دل تو ڈولتا ہے، اور مانتا ہے کہ وہی زبان زد عام ہوگا اے مفتی، وہی زبان زد عام ہوگا اے مفتی، جو شیر کان میں سب کے ہی شہد گھولتا ہے، شیر کان میں سب کے ہی شہد گھولتا ہے، بہت خوب، جو دستے چشم سے دل کے کواڑ کھولتا ہے، نفس نفس کی جزی بولی اس کی بولتا ہے، مفتی ایاز صاحب بھی بہت ہی عمدہ کلام پیش کر رہے تھے، ماشاء اللہ، صحت میں بھی بہت اچھا انداز ہے پڑھنے کا۔ میں اب چلتا ہوں، بہت دیر سے ہمارے تشریف فرمائے بزرگ شاعر ایم ارشد راہی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ آئیں، میں انہیں شعر کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ ہوائے شہر کے حق میں نہیں تھا، اس لیے وہ ہوائے شہر کے حق میں نہیں تھا، اس لیے پڑ گیا سولی پہ چڑھنا ایک دن منصور کو، اب مصلحت کہیے خدا کی شاخ سے جو ٹوٹ کر ذات کے منکار میں رہنا پڑا انگور کو، چاہیے مصلحت کہیے خدا کی شاخ سے جو ٹوٹ کر ذات کے منکار میں رہنا پڑا انگور کو۔ میں اس شعر کے ساتھ میں دعوت سفر دے رہا ہوں راہی صاحب کو، بزرگ شاعر اچھا کہتے ہیں۔ واجب احترام رئیس حیدری صاحب، معزز شعراء کرام و ریسپیکٹیبل شاعرات، السلام علیکم۔ پہلی سی اپنی کتاب سے غزل پیش کرنا چاہتا ہوں، اس میں مزاحمتی ادب بھی ہے۔ عرض ہے، گھر امیر شہر کے
घर अमीर शहर के तो हर सू उजाला है, घर अमीर शहर के तो हर सू उजाला है, बेरोजगारी ने बंद दरवाजों पे डेरा डाला है, बेरोजगारी ने बंद दरवाजों पे डेरा डाला है। बंद दरवाजे शरीफ लोगों के और गरीब लोगों के होते, जो बंद रहते हैं। घर अमीर शहर के तो हर सू उजाला है, बेरोजगारी ने बंद दरवाजों पे डेरा डाला है। ऐशो आओ कभी तारीकियों पे भी बरस के देखो, ऐशो आओ कभी तारीकियों पे भी बरस के देखो, ये रोशनियों से रफाकतों का दस्तूर निराला है। ऐशो आओ कभी तारीकियों पे भी बरस के देखो, ये रोशनियों से रफाकतों का दस्तूर निराला है। खिजा अक्सर भूल जाती है रास्ता उन ऐवानों का, जी खिजा अक्सर भूल जाती है रास्ता उन ऐवानों का, जहाँ इज्जत नफ्स हर गरीब की तरन वाला है। खिजा अक्सर भूल जाती है रास्ता उन ऐवानों का, जहाँ इज्जत नफ्स हर गरीब की तरन वाला है। कहने को हम एक ही शजर के बर्ग हैं सारे, मुफ्ती साहब कहने को हम एक ही शजर के बर्ग हैं सारे, मेरी फिसकियों में वो कानून से क्यों बाला है, मेरी फिसकियों में वो कानून से क्यों बाला है। कहने को हम एक ही शजर के बर्ग हैं सारे, मेरी सिस्कियों में वो कानून से क्यों बाला है। तनाजली के सारे हथकंडे दुश्मन से सीख लिए, अमेरिका और फ्रांस से सारे सीख लिए। तनाजली के सारे हथकंडे दुश्मन से सीख लिए, झूठ नहीं सच है यारो बिल्ली शेर की खाला है। हेल्प की है। तनाजली के सारे हथकंडे दुश्मन से सीख लिए, झूठ नहीं सच है यारो बिल्ली शेर की खाला है। तेरी गजलें भी जगा न सकी मदहोश जमीरों को, तेरी गजलें भी जगा न सकी मदहोश जमीरों को, राही शायरी में अरक रेजी का अजब शौक पाला है। तो हर सू उजाला है, बेरोजगारी ने बंद दरवाजों पे डेरा डाला है। 4-5 इशारा अगर इजाजत दें तो और पेश कर देता हूँ। 4-5 की भी छोटी गजल होती है। और लोग हैं इसके बाद पढ़ लेंगे दोबारा दूसरे दौर पे। कोई बात नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। आपने लगता है बिल्कुल नई बहर का इस्तेमाल किया है। ये पैरों के बारे में जरा आपको रहता है, जरा आपकी ना थोड़ी सी मशीन कमजोर हो गई है ये चेक करने वाली, हर चीज बहर में ही लिखी होती है। मैंने इसमें काफी काम किया हुआ है। आप ना मेरे नंबर पे जरा वो मैंने आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी की थी, आपने कबूल ही नहीं की, तो आप जो है ना वो मेरा नंबर लें और उस पर मैं तकदीक करके आपको भेजूंगा। मैंने ना मेरी काफी इसमें कमांडर मैंने इकबाल गाल मीर तक उनकी तकदीक की हुई है, और वो देखना मोहम्मद अरशद राही मेरी आईडी है, उस पे जरा देख लेना। तो थोड़ी सी उम्र के हिसाब से आपकी साबर साहब मशीन जरा ये जो चेक करने वाली ना वो कमजोर है, तो इसकी जरा थोड़ा सा ये मसला है, महसूस ना करना इस बात को। वैसे तो लिखना हो तो आदमी एक दिन में एक किताब लिख देता, ये बातें नहीं है। तो इंशाल्लाह काफी मैंने इस चीज पे कमांड रखी हुई है। मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा कलाम पढ़ रहे थे। एक बात ये जरूरी है राही साहब की, वो बशीर वाली जो सख्ती करने का है उसमें थोड़ा आगे पीछे हो जाता, बहुत से लोगों को उसमें समझ में नहीं आती है। जो आदमी आपके किसी की बहर को समझना जरा मुश्किल होता है, देर लगती है। हाँ वो परफेक्ट है। वो मैंने पिछले दिनों बहर रजत पढ़ी थी, मैंने बड़ी मशहूर बहर है मुस्तफिल उन मुस्तफिल उन मुस्तफिल उन मुस्तफिल, तो मैंने पढ़ी थी तो इन्होंने उसके बारे में ये बहरे मीर तवील बहरों में मीर बहुत कहते थे। एक भी हरफ बाहर नहीं था कभी, मेरा एक हरफ भी बाहर नहीं था। ये भी मेरा दावा है, ये देख लेना जरा। मुझे नंबर पे मुझे ना करना, मैं तस्दीक करके भेजूंगा इंशाअल्लाह।
पढ़ने में जबान के वो आगे पीछे हो जाए। कल आपने जैसे नहीं, हिजर कुछ नहीं पढ़ रहे होता। थे, हिजरे के जगह, तो हिजरे का वो मसला होता है। बहरहाल तो आइए मतलब मोहम्मद वहां पे आ सिराज जाता है यार, अब्दुल्ला तीन अरबी लफ्ज है, उसमें क्या है, बाकी लहजा होता है हर आदमी। रईस भाई बात ये है, तीन अरबी लफ्ज बात ये है कि वहां पे आता है क्या आगे भाई मैं अच्छा अब बात को स्टॉप करें, मैं मुशायरे को आगे बढ़ाता हूँ और फिर मोहम्मद सिराज अंजुम लाहौर साहब को इस शेर के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ कि मेरी बातों का असर हो ये जरूरी तो नहीं, मेरी बातों का असर हो ये जरूरी तो नहीं, मोहतरिफ सबकी नजर हो ये जरूरी तो नहीं, आंख वाले सभी बज़्म में तेरी लेकिन, आंख वाले सभी बज़्म में तेरी लेकिन, हर कोई अहले नजर हो ये जरूरी तो नहीं। शेर के साथ मैं दे रहा हूँ सिराज अंजुम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबकी इजाजत से गजल पेश कर रहा हूँ। अर्ज किया है नहीं बदला रुलाना भी, हंसाना भी, मनाना भी, नहीं बदला रुलाना भी, हंसाना भी, मनाना भी, मेरे लब पर तो हर पल है, मेरे लब पर तो हर पल है मोहब्बत का तराना भी। अच्छा है। देखिएगा कि लगी ठोकर गिरा था मैं हुजूम बेखुदी में जब, लगी ठोकर गिरा था मैं हुजूम बेखुदी में जब, अभी तक याद है उसका लपक कर वो उठाना भी। क्या बात है, क्या कहने सिराज भाई, बहुत अच्छा। शुक्रिया मुफ्ती भाई, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। लगी ठोकर गिरा था मैं हुजूम बेखुदी में जब, अभी तक याद है उसका लपक कर वो उठाना भी। और ये शेर देखिएगा, कभी जो खत मोहब्बत में उसे हर रोज भेजे थे, कभी जो खत मोहब्बत में उसे हर रोज भेजे थे, अभी है नक्श इस दिल पर वही गुजरा जमाना भी। अच्छा, क्या मंजर कशी कर रहे हैं आप, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। कभी जो खत मोहब्बत में उसे हर रोज भेजे थे, अभी है नक्श इस दिल पर वही गुजरा जमाना भी। सिराज भाई ऐसा लग रहा है जैसे हम सब अपने कॉलेजेस के जमाने में चले गए। चल कर उसकी राहों पर हमेशा मैं तो चलता था। क्या बात। संभल कर उसकी राहों पर हमेशा मैं तो चलता था, ख्यालो ख्वाब है लेकिन मोहब्बत का फसाना भी। क्या बात। बहुत शुक्रिया। करूं कैसे मोहब्बत में अभी से रूबरू उसको, करूं कैसे मोहब्बत में अभी से रूबरू उसको, बदल डाला है जालिम ने कहीं अपना ठिकाना। क्या कहने। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। करूं कैसे मोहब्बत में अभी से रूबरू उसको, बदल डाला है जालिम ने कहीं अपना ठिकाना भी। और मक्ता अर्ज कर रहा हूं, निगाहों का मिलन कितना अनोखा था, निगाहों से निगाहों का मिलन कितना अनोखा था, मसलसल याद है अंजम वो उसका मुस्कुराना भी। क्या बात है, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। निगाहों से निगाहों का मिलन कितना अनोखा था, मसलसल याद है अंजम वो उसका मुस्कुराना भी।